Hello everyone, welcome you back again in the next part of the topic, that is section formula. Very interesting, very simple. I told you already that distance formula थोड़ा सा difficult है, but after that everything is just simple. Okay, so let us see section formula क्या है. It's a very simple concept. Let me tell you. In distance formula we can able to find the distance between the two coordinates, let me tell you, isn't it? So imagine if I give you this as point A and the coordinates are given here B and the coordinates are given, you can find the distance between these points AB. But section formula basically do not find distance. तो section formula क्या होता है? It actually finds coordinate. Okay, so that is quite interesting here. Imagine if I have the point A here and B here, and there is some point P, may divide this AB in some ratio, like imagine for an example I'll take 3 is to 4. So it is dividing in 3 is to 4 ratio. That means I mean to say AP upon PB is equal to 3/4. ये जो division है ये 3/4 ratio में है. Then if I know the coordinate of A as 1, 3 and B as 2, 5, any coordinate I do, you can easily find P. You can easily find this coordinate P using section formula. Okay, so what the section formula is, how we have to use it, everything now we will discuss in this video. Let's get started. First of all, let me erase all these points and let me take a general coordinates here. Like let A be x1 y1 and B be x2 y2, any coordinates, and the ratio that what it divides is dividing in the ratio m is to n. In your textbook the same thing is given as m1 and m2, which normally becomes difficult to understand. That's the reason we take m and n, and believe me, it hardly going to affect your score. So don't worry, however the formula is, it is correct, don't worry for it. Anyway, so P is x comma y, imagine. So I can easily find out P x comma y by using this formula. Check कर लो, mx2 plus nx1 upon m plus n, which is written here, comma my2 plus ny1 upon m plus n. थोड़ा फॉर्मूला लगने के लिए डिफिकल्ट लग सकता है, बट इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी सिंपल आइडिया. सो आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. सबसे पहली बात तो ये जो है ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो दिख रहा है ये है वाई कोऑर्डिनेट. दैट मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5,6 लाइक दैट. तो ये है मेरा 5 और ये है मेरा 6. तो ये जो कंप्लीट टर्म जो दिख रही है ये यहाँ पे ये मुझे एक वैल्यू देगी और ये जो टर्म है ये मुझे एक वैल्यू देगी, एंड दोज आर नथिंग बट माय कोऑर्डिनेट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव और हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ इट. तो सिंपल सी बात है, मैं सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ. हियर इज़ माई ए पॉइंट, मे बी इमेजिन 5, -6 ऐसे कुछ तो लेता हूँ, एंड बी इफ़ आई टेक 3, -3, 2 ऐसे कुछ तो लिया, एंड देर इज़ पी पॉइंट which is dividing in the ratio 3:2. Just for sake of solving this question, I took it 3:2. Let us see whether it is possible to find the p value or no. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर्मूला लिखूंगा, सेक्शन फॉर्मूला. जैसे p x y इज इक्वल्स टू, देख लो p, यही फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है. ऑलवेज रिमेंबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. इन डिस्टेंस फॉर्मूला द ऑर्डर वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इन सेक्शन फॉर्मूला order is extremely important. So always remember, in this question diagram drawing is compulsory and using proper order is necessary. Okay, so proper order का मतलब क्या होता है, ये x1 x2 है और ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है. Okay, so when it comes to 2 I am supposed to choose coordinate from here, and when it comes to 1 I have to choose coordinate from here. So that you should not change. Okay, if you change that like in the distance formula, things will go completely wrong. Okay, so from the beginning have habit of solving it by using correct order. Okay, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे डायग्राम ड्रॉ करना, बेस्ट वे डायग्राम ड्रॉ करो, दैट्स इट. ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव पी एक्स वाई, ये है मेरा m, दिख रहा है आपको, m x2 मतलब क्रॉस करना है, देख लो यहाँ पे ऐसे क्रॉस,
ठीक है. सो 3 इंटू माइनस थ्री ऐसे लिखते हैं, 3 इंटू माइनस थ्री प्लस ये मेरा n x1 तो क्रॉस करना है. ठीक है. तो 2 इंटू फाइव अपॉन m प्लस n दैट मीन्स 3 प्लस 2 दैट्स इट. my2 अगेन क्रॉस चेक कर लो, 3 इंटू टू, 3 इंटू टू क्रॉस प्लस 2 इंटू माइनस सिक्स, 2 इंटू माइनस सिक्स अपॉन 3 प्लस 2 दैट्स इट. कुछ नहीं, हो गया, काम ही हो गया. 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन 5 isn't it? Minus 9 plus 10. 3 to the 6, 6 to the 12, 6 12 minus 6, minus 6 upon 5. हो गया मेरा आंसर, डन. आई गॉट द आंसर. द आंसर इज 1/5 कॉमा माइनस 6/5 इज अ कोऑर्डिनेट. हाँ ऑफकोर्स यू मे कंसिडर कि हाँ अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया कोऑर्डिनेट, बट इट्स ओके, इट्स करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम. कोऑर्डिनेट कैन बी इन फ्रैक्शन, दैट्स नॉट द इशू. ठीक है, गेटिंग इट? इंटरेस्टिंग इजंट इट? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. चलो, ये क्या हो गया? जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट क्लियर दिस क्वेश्चन. ये लास्ट, ये ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो लेट ए बी 3,2 and b be 7,5. divide p divides it in 3:4 ratio. Okay, then find out the coordinates of p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. कैन वी डू दैट? ईजी है, देखते हैं. सबसे पहले मैंने बोला था जैसे डायग्राम ड्रॉ करो. कॉमा, अभी आप एक काम करो, सबसे पहले खुद ट्राई करो. ये हो गया 3,2 और ये हो गया 7,5 और ये है p जो x, y होगा, एंड देयर इज ए रेशो दैट इज 3:4 दैट विच इट गेट्स डिवाइडेड. तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करता, आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है नहीं है तो चलो देखिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है. कुछ नहीं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बताता. चलो अभी पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गेट द सम डन. आई एम ऑफकोर्स गोइंग टू सॉल्व इट, यू कैन वेरीफाई इट. ओके, ठीक है, तो पॉज करो. आई एम गिविंग यू 3 seconds. 1 2 3 pause. Okay, I hope you must have solved the question. Even in case if you did not get it, it's okay, there is no problem. I'm there to help you another time. Okay, how can I solve this question? So I have pxy is equals to p. Writing this way is very very important. mx2 plus nx1 upon m plus n. Always write in this way. my2 plus ny1 upon m plus n. ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ऑफ, एंड रिमेंबर दिस इज सपोज टू बी ऑलवेज राउंड ब्रैकेट, नेवर गिव स्क्वायर ब्रैकेट, because these are coordinate and coordinates are always supposed to be written in a round bracket. So always remember, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा दिख रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं. डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक इन केस इफ यू आर डूइंग दैट. राउंड ब्रैकेट ही चाहिए यहाँ पे. ओके, तो mx2 क्रॉस, आई होप यू अंडरस्टैंड, 3 and 7, so 3 into 7 plus 4 into 3, 4 into 3 upon 3 plus 4, comma 3 into 5 क्रॉस है ना, प्लस 4 into 2 upon 3 plus 4 and done. That's it. I hope you understand now. So 3 7s are 21 and 12. Okay, 21 plus 12 is 33. देख लो, 21 plus 12 33 upon 7 upon 5 3s are 15 plus 4 2s are 8. 15 plus 8 कितना होता है? 23 upon 7. That's it. Coordinate ready. Clear? Getting? Understanding? Very very simple. Very very interesting. Fine. So I'll just clear this page. We'll go for some other question. थोड़ा सा और इसको difficult करते हैं. Let's make it difficult. Imagine if there is a point A which is 0,10 and there is a point B which is 10,20 and there are point P, Q, divides it in 3 equal parts. The same thing is called as a trisecting.
ठीक है। तो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि यू हैव टू फाइंड पी एंड क्यू। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये सिंपली बोल रहा है कि देर इज अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हियर। यहाँ पे पॉइंट ए है विच इज़ 0,10, यहाँ पे पॉइंट बी है विच इज़ 10,20, ठीक है। एंड नाउ देर इज अ पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। नाउ पी एंड क्यू इज ट्राइसेक्टिंग। ट्राइसेक्टिंग का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट। बाइसेक्टिंग का मतलब जैसे होता है टू इक्वल पार्ट, वैसे ट्राइसेक्टिंग का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स। सो ये थ्री पार्ट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो ये क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला का, इट्स वेरी क्लियर। क्यू के बारे में थोड़ा एक टाइम बिंग भूल जाओ, पी के बारे में देखते हैं। इजंट इट पी, आई कैन टेक इट एज एक्स कॉमा वाई। I can easily find out the coordinate of x comma y if I know the ratio in which it is dividing. Okay, but ratio is not given in the question. ये जो question है, इस question में तो ratio नहीं दिया है कि in what ratio p divides or in what ratio q divides. But why don't you understand one simple thing? It's easy to find out the ratio. Don't you think it is dividing in 1:2 ratio? That p divides in 1:2 ratio. देख लो, ये एक part है और जो p के बाद है वो दो parts है, तो 1:2 ratio में divide हो रहा है. So that's it. I can easily find out p x y is equals to p mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कॉमा के जगह पे प्लस लिख देते हैं बच्चे बाय मिस्टेक. सो रिमेंबर इट इज़ अ पॉइंट, तो कॉमा ही होना चाहिए. सो बी विजिलेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, अपना सिंपल वाली बात, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू 0, है ना, m n x2, तो 0 हो जाएगा. अपॉन m प्लस n, तो 3 हो जाएगा. कॉमा my2, सो 20, ny1, सो अगेन 20 अपॉन 3. एंड व्हाट माई आंसर इज p 10/3, कॉमा 40/3. दैट्स इट. इट्स सो सिंपल, राइट? इजंट इट? वेरी 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 सिंपल. लेकिन क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई इवन नीड टू फाइंड आउट व्हाट क्यू. तो क्यू के लिए यहाँ पे तो एक्स वाई कंसिडर किया, तो यहाँ पे मैं ए बी कंसिडर करता हूँ, ठीक है. तो क्यू ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू क्यू, वही होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बिकॉज ये तो फॉर्मूला है. my2 प्लस ny1, सॉरी, अपॉन m प्लस n, बराबर है ना. m, अभी ये रेशो तो सेम नहीं होगा बिकॉज q इज नॉट डिवाइडिंग इन द सेम रेशो. तो q इज डिवाइडिंग इन व्हाट रेशो, लेट अस सी. तो q डिवाइड्स इन 2:1 रेशो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ, राइट? चलो अभी mx2 मतलब क्रॉस करना है, तो 20 प्लस nx1 मतलब 0 अपॉन 3, कॉमा my2 मतलब 40 प्लस ny1 दैट मीन्स 10 अपॉन 3. तो माई आंसर इज क्यू इज 20/3, कॉमा 50/3. दैट्स इट. आई गॉट द आंसर्स. क्लियर? गॉट द पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना. चलो, इमेजिन व्हाट इफ द रेशियो इज नॉट गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट रेशियो. फॉर एन एग्जांपल, लेट p x, 0 divides a 3, -5 and b 2, 7. फाइंड रेशो. मतलब अभी रेशो नहीं दिया है, पॉइंट दिया है विच इज डिवाइडिंग दिस टू एंड यू हैव टू फाइंड द रेशो. थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया. लेट अस सी व्हाट कैन आई डू दिस, और व्हाट कैन आई डू फॉर दिस क्वेश्चन. Here we have a point which is 3, -5. Here we have b point which is 2, 7. And here we have somewhere on AB x, 0. Do you know one simple thing? X, 0 is the point lie on x axis. चलो, सबसे पहली बात ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए. देख लो, जनरल पॉइंट ऑन x axis. क्या होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? इट इज x, 0. ऑलवेज रिमेंबर दिस. पॉइंट ऑन y एक्सिस, इट इज ऑलवेज 0, y.
Remember this, always and always remember that it is going to be in this manner. Okay, and any point, if I want any point, जैसे हमने HOTS क्वेश्चन में सेंटर के लिए किया था, ओके, इफ आई वांट एनी पॉइंट इट विल बी x, y. ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सम टाइम व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक हियर as a, here b, and this is a comma b. Even that can be okay. So please mention this with star mark in your notebook at the margin, at the top. Okay, point on x-axis is a comma 0, point on y-axis is 0 comma b, and any point on plane, that Cartesian plane, is always a comma b. ठीक है, ये तो अभी ज़रूरी नहीं है because already point is given. There is nothing is mentioned about what do you say, x-axis or y-axis, but one thing you understand कि it is a point on x-axis, है ना, ये तो x-axis पे point है. तो ये p point हम लोग पकड़ लेते हैं. What I know about pxy, ये तो फॉर्मूला है मेरा. pxy क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन m एंड n तो नहीं दिया है. तो what I have to do, I have to choose that. That means I will take m is to n, the ratio. Okay, so any ratio I have chosen, m is to n. Now p is given, what is that, x comma 0, है ना, p is x comma 0. चलो, then this side क्रॉस करना है, mx2 so 2m, nx1 so 3n अपॉन m plus n, my2 7m, ny1 माइनस 5n, है ना, क्योंकि माइनस है, अपॉन m प्लस n. ये हो गया मेरा पॉइंट. लेकिन पॉइंट की एक सिंपल बात आपको पता होगी कि x कोऑर्डिनेट इसके साथ इक्वल होता है एंड y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होता है. ओके, आई नो y कोऑर्डिनेट दिस टाइम. व्हाट आई नो, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 7m माइनस 5n अपॉन m प्लस n. होप यू अंडरस्टैंड कि ये और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. So that's why, as I know that this coordinate is 0, I'm equating it with that coordinate. Can I shift this m plus n this side? It is division, it is going to become multiplication. So 0 into m plus n is equals to 7m minus 5n. तो 0 into m plus n क्या हो जाएगा, 0. 0 is equals to 7m minus 5n. तो 7m या फिर 5n में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ. तो 5n if I shift the other side, I get 7m. लेकिन बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है. रेशियो मतलब क्या, m अपॉन n, यही तो फाइंड करना है ना मुझे. तो ये m है, n को अगर उधर शिफ्ट कर दे तो अपॉन हो जाएगा, एंड 7 को इधर शिफ्ट कर दे तो वो भी अपॉन हो जाएगा. तो 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू m अपॉन n. तो व्हाट द रेशियो इज, द रेशियो हो गया, रेशियो इज 5:7 एंड दैट्स द आंसर. Okay, is this clear? Got the point? Imagine ऐसे होता, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. जस्ट इमेजिन कि इस 0 की जगह पे यहाँ पे 6 होता, x, 6 ऐसे होता. ठीक है, तो हाउ यू वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसकी जगह पे हम लोग 6 लिख लेते, थोड़ा सा कलर चेंज करता, इसकी जगह पे 6 लिख लेते, बराबर है ना. इसकी जगह पे हमने क्या लिया, 6 लिया. तो वही है ना कॉन्सेप्ट के, वी हैव टू इक्वेट दिस 6 विद दिस कोऑर्डिनेट. तो 6 इज इक्वल्स टू 7m minus 5n upon m plus n. Shift this side. Unfortunately, it is not going to become 0, but it's fine. I can just write 6 into bracket m plus n is equals to 7m minus 5n. It is going to be 6m plus 6n is equal to 7m minus 5n. So all n I can shift one side and all m I can shift one side. So I get 6m minus 7n is equals to minus 5n minus 6n. बराबर है. So this is going to be equal to minus m and here it is going to be equal to minus 11n. Minus get cancelled. n I can shift the other side. So m is equals to 11n हो जाएगा. m upon n is equals to 11 upon 1. So what the ratio is? 11:1. Okay, so whatever the point here is, here let it be anything, I can easily get the ratio, right?
using same simple formula, that is section formula. So whatever this is nothing but it is nothing but a section formula. I hope you understand. Is this clear to you all? Okay, चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज. चलो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको करना क्या क्या है आज. ये रहा आपका वर्क, सेक्शन फॉर्मूला. आपके पास पीडीएफ तो होगा ही. चलो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं सिखाया है. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मैं जस्ट सर्कल कर देता हूँ. ये छोड़ के यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं. पहला तो इजी है बिकॉज ए इज गिवन, बी इज गिवन, फाइंड एनी पॉइंट. मतलब वो पी होगा, कोई भी पॉइंट. रेशो दिया हुआ है एंड कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, यू कैन इजीली फाइंड इट. ठीक है, फाइंड अ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. देखो ये ए पॉइंट है 1, -2. ओके, ये बी पॉइंट है -3, 4. ठीक है, ट्राइसेक्ट मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स विच इज डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो मैं जो पी फाइंड करना है, मुझे क्यू फाइंड करना है. मैंने आपको अभी भी बताया, बस पॉइंट्स अलग है, बट यू हैव टू सॉल्व इट, है ना. राइट, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1:2 रेशो फॉर पी एंड फॉर क्यू क्या हो जाएगा, 2:1 रेशो हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. यू कैन इजीली फाइंड. 2 बार क्वेश्चन वही करना है, दैट्स इट. देखो, इन वॉट रेशो x, 0 डिवाइड्स दिस. ये तो अभी भी किया हमने. इन वॉट रेशो x एक्सिस. अभी मुझे बताओ पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है, a, 0. तो मतलब वही चीज़ हो गया ना. इन वॉट रेशो x एक्सिस डिवाइड्स, मतलब कोई तो एक पॉइंट डिवाइड करेगा एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी a, 0. वही क्वेश्चन फिर एक बार है, दैट्स इट. ओके, इज दिस क्लियर. तो इफ़ यू वांट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. इन वॉट रेशो x एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस टू एंड फाइंड द पॉइंट एज वेल. हाँ, ये थोड़ा सा अलग है. चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा अभी आपके सामने. और क्या है वो, 2, -3, 5, 6. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इरेज कर देते हैं. तो व्हाट आर दोस पॉइंट, 2, -3 एंड 5, 6. एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी लेटर ऑन. कहाँ गया यार ये, अच्छा करेक्ट. एंड एक्स एक्सिस डिवाइड करना है, पॉइंट भी फाइंड करना है. तो लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी. तो आई कैन इजीली ड्रॉ द फिगर. ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन फॉर्मूले के लिए फिगर ड्रॉ करो, इट बिकम्स ईजी फॉर यू. बी क्या होगा, 5, 6 हो जाएगा. Now there is a point on this particular AB which is on x axis. So x axis अगर मे बी ऐसा होगा, ऐसे कुछ तो x axis होगा, इमेजिन करो. तो isn't it this point is supposed to be on x axis. तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, a, 0 होना चाहिए, राइट. तो कोई भी पॉइंट हो P, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a, 0. ठीक है. नाउ आपको रेशो भी फाइंड करना है और वो पॉइंट भी फाइंड करना है. तो 2 चीज़ें फाइंड करनी है. लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्वेश्चन. तो मैं चेंज करता हूँ कलर को. चलो पहले रेशो फाइंड करते हैं जैसे अपने वे तरीके से. तो रेशो हम लोग कंसिडर करेंगे m/n. लेट इट डिवाइड इन द रेशो m/n. सो व्हाट डू आई गेट हियर इज नथिंग बट px, y. आप बोलोगे अभी x, y क्यों लिया, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ और कुछ नहीं. mx2 + nx1 अपॉन m + n. ये फॉर्मूला इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. एंड my2 plus ny1 upon m plus n. Write the formula in the same way. This is surely going to help you. It's going to be p a, 0. तो ये क्या हो जाएगा, p mx2. तो 5m plus 2n upon m plus n. Hope you understand that. क्रॉस कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं. देख ही नहीं रहा हूँ कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है और क्या है. आई एम जस्ट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक कॉन्सेप्ट. तो my2 मतलब 6m -3n अपॉन m + n. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. इसके साथ हमने क्या किया था, इक्वेट किया था इसको और इसको, मतलब y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया था सो दैट आई कैन इजीली गेट द रेशो. तो 0 इज इक्वल्स टू 6m -3n अपॉन m + n. m + n इधर शिफ्ट हो गया, 0 to m + n बिकम 0. 0 इज इक्वल्स टू 6m -3n. ठीक है, तो 3n को इधर शिफ्ट हो गया, 3n इज इक्वल्स टू 6m. तो m अपॉन n चेक करता हूँ, m इधर शिफ्ट करता हूँ, 6 इधर शिफ्ट करता हूँ. तो 3/6 इज इक्वल्स टू m अपॉन n विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2. मेरा रेशियो मिल गया. ओके, बट द क्वेश्चन सेज फाइंड दैट पॉइंट. ओके, अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइंड द रेशियो ओनली, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट. पॉइंट फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है, ये a फाइंड करना है रे, और कुछ नहीं. तो मेरा a क्या है यहाँ पे देख लो. वही तो मैंने बोला कि फॉर्मूला इफ यू राइट प्रॉपरली एवरीथिंग इज इजी. ए क्या है मेरा, बट
A is equals to 5m plus 2n अपॉन m plus n, एंड मेरा m and n तो मुझे पता है अभी, तो 5 into 1 plus 2 into 2 upon 1 plus 2, तो 5 1 is 1, 5 1 is 5, 5 plus 2 2 is 4, 9, 9 upon 3 is 3. So what is that point? The P is 3,0. This simple the question is, this simple the question, right? कुछ नहीं है, सिर्फ m and n को बस उसमें पुट करना है, काम खत्म हो गया, that's it. ठीक है, तो ये है आपका वो फिफ्थ क्वेश्चन. इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस वन एंड फाइंड द पॉइंट एज वेल, isn't it? Same way, find the point on y axis which is dividing the join of this one. वही चीज़ करना है y axis के लिए. y axis का पॉइंट क्या होता है? b, 0. राइट, क्लियर. सेवंथ क्वेश्चन, p m, 6 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस वन, फाइंड m. वही क्वेश्चन, m फाइंड करना है, मतलब ये m फाइंड करना है. एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि रेशियो भी हम लोग m ले रहे हैं एंड ये भी m है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी अब सिंबल के लिए प्रॉब्लम आ सकता है आपको, तो इट्स बेटर यू चूज दैट एज ए, टू मेक दैट चेंज देयर इन योर PDF और इन योर प्रिंट के इट इज सपोज टू बी ए. और इफ यू डू नॉट हैव प्रिंट और इफ यू डू नॉट हैव डायरेक्टली हार्ड कॉपी ऑफ इट, व्हाट यू कैन डू इज राइट डाउन इन नोटबुक सेवंथ क्वेश्चन m इज ए, ऐसे लिख के रखो, सो दैट यू कैन मेक दैट चेंज वेन एवर यू सॉल्व इट. ओके, तो आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, दैट आई विल टेल यू. यू हैव टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट एक्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन. आज का ये आपका टास्क है, कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ एट एनी कॉस्ट. ओके, एंड सेंड all these questions to me, all these questions to me. Okay, so today itself I am expecting all the questions before 9 p.m. Fine. HOD's question, if you don't send, it's okay, but these 9 questions are compulsory, you have to send it. Okay, your topic is very simple, लेकिन आप लोग ज़रा भी थोड़ी भी लापरवाही बरतोगे इसको टॉपिक में, तो ये टॉपिक आपको ट्रबल करेगा अननेसेसरी. तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. देखो ये सेकंड फॉर्मूला है, मतलब 2/3 टॉपिक खत्म हो गया, बस एक ही पार्ट रह गया, एक ही फॉर्मूला रह गया, खत्म, टॉपिक फिनिश हो जाता है. तो जितना आप खुद से वर्क करोगे, जितना फास्ट काम करोगे, इतना एक टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम topic will always remain in your pocket. It will always remain in your pocket, will be ready always to give you scores. So keep this topic in the pocket, okay, today itself. So thank you so much. Bye bye. See you in the next video.